Welcome back, guys. Welcome back to Stock Explorer once again. Today it's Thursday, and weekend is about to start in a couple of days. So, since the markets are correcting and there's a good correction in the market, today I want to talk about a stock called balkrishna Industry. This is a stock related with the industry of tires and rubbers. I'm sure not many of you must be knowing that balkrishna Industry is the largest in comparison of market cap, the biggest tire company in our Indian stock market. सबको यही लगता होगा कि एम आर एफ इज द बिगेस्ट वन बिकॉज उसका 1,30,40,000 रुपये का शेयर है तो वही सबसे बड़ी कंपनी होगी. बट अगर कभी बालकृष्ण इंडस्ट्री ने स्प्लिट और बोनसेस ना दिए होते देन प्रॉब्ली बालकृष्ण इंडस्ट्री का शेयर आज एम आर एफ से भी ज़्यादा होता. सो आई एम श्योर यू वोंट बी नोइंग दिस बट आज हम लोग उसके बारे में काफ़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे. क्यों मैं इस इंडस्ट्री के बारे में अभी इस समय फोकस कर रहा हूँ, स्पेशली बिकॉज इट इज़ अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टायर ऐसी चीज़ है कि आप एक साथ 4 ही लगाते हैं टायर गाड़ी में एंड यू डोंट बाय 5 और 6 एक्स्ट्रा रखते नहीं है. जैसे जैसे यूज़ होता है उसका वैसे वैसे आप लेते हैं. एंड कंपनी के लिए कब अच्छा होता है जब उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इफेक्ट आता है. सो सिंस क्रूड ऑयल रिसेंटली बहुत बढ़ गया था and it was a negative thing for all the industries which related with crude oil. So tire industry के लिए भी negative था. अभी फिलहाल crude oil is correcting itself and stock has also been corrected. A lot of the stocks have also corrected. So it's a good time to look into the stock. Okay, let's see like what does the company do. Balkrishna Industry. First, we'll look at the market cap of the company. So the company's market cap is 559,176 crore, which is massive, massive market cap. I'll show you all. This is the comparison of all the tire companies in India. And right now in India, the biggest market cap company is Balkrishna Industry, 59,000 crore. After that, it's MRF 56,000. Then it's Apollo 32,000 crore. Then it's CEAT 12,000 crore. Then it's JK Tire. Then it's TVS Sri Chakra. And then it's Goodyear. So market cap wise, BKT is the biggest one. No comparison that. Then we come to ROC. That is return on capital employed. Company return कितना देती है उसके capital पे, which is 17%, which is compared to all the market players decent है. I wouldn't say it's extraordinary because आप देख सकते हैं Goodyear is giving 21% and CEAT is giving 20%. But Balkrishna Industry is giving 17% and still it's the highest market. सबसे बड़ा big daddy of the all है and still it's able to make a fairly decent return because ये सब तो small companies हैं and sooner or later they will lose the competitive edge जो अभी इनको मिल रहा है because CEAT is dealing in two wheelers and auto tires, auto like small automobile tires, and BKT has a special market of big off-roading tires. तो उसमें एक फील्ड में काम करता है BKT. So we'll talk about that as well. Okay. Now let's see what did the company started with or when it started. So company started in 1987. First plant was in Aurangabad, then started off production of off-highway tires in 1995. So this was the time when they first came in off-road tires. They made a 2002 plant in Rajasthan, and then they started production of ATV gardening and earth moving tires. What is earth moving tires? अगर आपने देखा होगा JCBs बड़ी बड़ी और जो बड़ी वाली कोल एंड माइनिंग फील्ड्स में जो बड़े ट्रक्स जाते हैं जिसके बड़े बड़े टायर्स होते हैं उन सब के टायर्स BKT बनाने लगी 2003 में. और लीडर थी ये, अभी भी है वर्ल्ड में, एंड स्टार्टेड ऑफ विद दैट एंड स्टिल कंट्रोल द मेजर पोर्शन ऑफ इट. फिर उसकी रीब्रांडिंग हो गई कंपनी की BKT के नाम से 2011 में. तब 2009 में इसने 1,000 करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस किया था. देन दे स्टार्टेड अ ग्रीन फील्ड इन गुजरात एंड अनाउंस केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उन्होंने वलुज एंड भुज में. अभी 2020 में सेल्फ रिलायंट ऑन कार्बन ब्लैक विद कंप्लीशन ऑफ 2 phases इन गुजरात. तो कार्बन मतलब इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर लिया, खुद ही कार्बन ब्लैक का अपने आप ही प्रोडक्शन करने लग गए. commercialized new replacement plant at Woluj with capacity of 30,000 metric
ton per annum, which is massive, which is around 30 metric ton per day. Commercialized brownfield tire plant at Bhuj with capacity of 50,000 metric ton. So India's largest off-way highway tire manufacturer बन गया. So this is the roadmap of their journey, like how they started it and how they reached at this point. तो उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे. Okay, now let me show you in what all fields the company is in. तो मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट जो है उनका एग्रीकल्चर से आता है 62%. तो 62% जो उनका एग्रीकल्चर से आता है, मेजर पोर्शन. OTR बोल तो ऑन द ऑफ द रोड, बेसिकली ऑफ रोड सेगमेंट जो है उनका वो है 34%, जिसमें वो ट्रैक्टर्स आते हैं. और आपने अगर मॉन्स्टर ट्रक्स देखे होंगे यूएस में, तो वो सब आते हैं. जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनी सोच रहे हो ना, यूएस में, यूरोप में, चाइना में, वहाँ तक सप्लाईज करती हैं बीकेटी. बाकी अदर जो हम लोग की नॉर्मल कार्स आते हैं उसमें तो अभी उतरे भी नहीं है प्रॉपरली. बीकेटी इज़ नॉट ओवर देयर इन कमर्शियल व्हीकल्स. हमारी गाड़ियों के लिए वो बनाया भी नहीं उन्होंने. सो अभी तो बहुत बाकी है. ओके, एंड रिप्लेसमेंट में इनका 69% है. जब वो टायर चेंज करते हैं तो वहाँ पे इनकी काफ़ी मार्केट है. OEMs भी बनाते हैं, मतलब कंपनीज के लिए. एंड अदर अदर सेगमेंट्स में भी 2.6% है. जियोग्राफिकल सेल्स में देखा जाए तो सबसे बड़ी मार्केट इनकी यूरोप है. 50% जो मार्केट शेयर है वो यूरोप से आता है इनको, विच इज़ 50% राइट है. एंड रेस्ट फ्रॉम अमेरिका एंड इंडिया. इंडिया में से अराउंड 21% आता है एंड अमेरिका से 17% आता है. तो आप देखिए बड़े बड़े दो सेगमेंट तो इनके फॉरेन सेगमेंट ही हैं. अराउंड 60-70% तो बाहर से ही आता है. एंड देन अदर वर्ल्ड आउट ऑफ मीन, बाकी की जो कंट्रीज बची वहाँ से भी आता है. तो इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्टफोलियो है. ऐसा नहीं कि सब इंडिया से ही बेचते हो, तो हर जगह सप्लाई करते हैं लोग. Okay, now I'll show you. I'll show the balance sheet and all, how much they earn later. But अभी quickly दिखाना चाहता हूँ like what is the logo, क्या दिखती कैसी कंपनी, आपको आइडिया रहे. तो बेसिकली यही सब बनाती है बड़े बड़े टायर्स ट्रैक्टर्स के लिए, जंबो ट्रक्स के लिए. तो यही सब इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है. ये सब कुछ ब्रांड्स हैं जिनके लिए ये कंपनी काम करती हैं. आप देखिए ये ब्रांड्स देखिए, आप आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे. कैटरपिलर के नाम से आपने सुना होगा, जेसीबी. बाकी सारे ब्रांड नहीं देखे होंगे क्योंकि इंडिया के ब्रांड्स नहीं है. ये सब यूरोप और एशिया, चाइना के एंड यूएस के ब्रांड्स हैं. तो कुछ कुछ जो आपने नामी ब्रांड है देखे होंगे, लाइक कैट एंड जेसीबी एंड क्लास. एक मान करके कंपनी है ट्रक की, यूएस की सबसे बड़ी, यूरोप में भी है. उनके लिए भी टायर्स बनाती है. तो ये बहुत बड़े बड़ी कंपनीज के लिए टायर्स बनाते हैं. दैट इज ए कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू ऑल दी अदर कंपनीज. ओके, लेट्स गो डाउन. सो इनके 4 प्लांट है एज आई एक्सप्लेन, ऑल इन राजस्थान, गुजरात एंड मुंबई. वहीं पे इनके मेन प्लांट्स हैं. इनकी साइकिल भी आपको बता दी मैंने. काफ़ी सस्टेनेबल भी रहते हैं अपना ये. तो ज़्यादा पोल्यूशन करने पे भरोसा तो कोई भी नहीं रखता, बट दे आर वेरी सस्टेनेबल कंपनी. एंड दे ऑल्सो प्रमोट वुमेन्स स्किल्स एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ वुमेन्स वेरी हाई इन द कंपनी. ये भी उन्होंने स्कोर किया था. अच्छा, ये देखिए, आपने देखा होगा मॉन्स्टर ट्रक्स यूएसए में, ये रेसिंग इवेंट होता है वहाँ पे एक. उसमें जितने भी टायर्स यूज होते हैं, मेजॉरिटी अराउंड 85 to 90% आर यूज फ्रॉम बीकेटी, विच इज बालकृष्ण इंडस्ट्री. यू मस्ट हैव नेवर नोटिस्ड कि ये बीकेटी बीकेटी वहाँ लिखा होता है. यू मस्ट हैव थॉट कि ये तो वहीं यहीं का ब्रांड होगा, बट इट्स अ इंडियन ब्रांड. बीकेटी इज द ऑफिशियल एंड एक्सक्लूसिव टायर मैन्युफैक्चर फॉर मॉन्स्टर जैम एंड इट्स फ्लीट मॉन्स्टर ट्रक्स. इट्स अ टॉप स्पोर्टिंग इवेंट इन यूएस. इवन इन कनाडा, कनाडा में भी हर जगह स्पॉन्सर करते हुए मिलेगा आपको. कॉन्टिनेंटल कप कर्लिंग, BKT is the title sponsor for Continental Cup. Then you come to Europe in Spain. BKT is official global partner for Spanish La Liga. वहाँ पे भी अपना इनका ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप है. ये देखिए आप, BKT बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इनकी स्पॉन्सरशिप है. इज ऑल्सो द टाइटल स्पॉन्सर फॉर इटालियन सीरीज बी फुटबॉल स्पॉन्सरशिप द न्यू बॉर्न. वहाँ पे भी स्पॉन्सर करते हैं, अपनी अपनी जर्सी तक भी स्पॉन्सर करते हैं. दीज आर प्रीटी एक्सपेंसिव स्पॉन्सरिंग. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, then you must be knowing that how expensive these are. But if you don't know, anywhere it costs somewhere around 30 to 40 crores to sponsor anytime any brand in anywhere. इवन ऑल्सो इन रग्बी वर्ल्ड कप उन्होंने वहाँ पे स्पॉन्सर की थी अभी रिसेंटली 2023 में.
और अभी देखिए आपका लेटेस्ट पीकेटी इज एसोसिएटेड विद यूनाइटेड रग्बी चैंपियनशिप, जहाँ पे टॉस हो रहा है, आप देखिए। अनदर स्ट्रेंथनिंग पीकेटी ब्रांड इन यूरोप, प्रीमियम पार्टनर ऑफ यूरो लीग बास्केटबॉल, दे ऑल्सो बास्केटबॉल में भी स्पॉन्सर किया है। आप ऐसा कोई स्पोर्टिंग इवेंट बचा नहीं जहाँ पे बीकेटी ने स्पॉन्सर नहीं किया हो। ट्रैक्टर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है यूरोप में, बिकॉज दे वर द बेस्ट टायर्स फॉर द ट्रैक्टर्स इन यूरोप सेगमेंट। बाकी BBL ऑफिशियल ऑफ हाईवे टायर पार्टनर ऑफ KFC BBL इज बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग में भी उन्होंने स्पॉन्सर किया है। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए T20 के लिए भी सीजन 16 में स्पॉन्सर थे, एंड उनके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है खुद ही। इसका वीडियो भी है यूट्यूब पे, आपको लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, और सेगमेंट इन्होंने अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग रखा है ऑफ रोड सेगमेंट में। अभी इनके पास मार्केट इतनी बड़ी है कमर्शियल व्हीकल्स की, जिसको उन्होंने टच करने की कोशिश नहीं की है। और उसमें कॉम्पिटिटिव एज क्या है इनका बाकी कंपनी से, वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एज ये है कि उनके प्रोडक्ट सेगमेंट में प्राइजेस कम है, एनीवेयर अराउंड 4 to 5% जो प्राइस है रेगुलर टायर से, वो कम पे देते हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट एडवांटेज दे हैव। मेंशनिंग की मार्केट कैप जो है पूरी मार्केट है टायर सेगमेंट में ऑफ रोड की, इट्स फॉर $15 billion, एंड आउट ऑफ दैट ओनली 4% ऑफ द होल मार्केट, $15 billion में से सिर्फ 4% ही हमारे पीकेटी के पास है। अच्छा, ये जो टायर्स की जो लीडिंग चीज़ है इनकी, वो क्यों है, आई शो यू। तो एग्रीकल्चर सेगमेंट मैंने आपको बताया 63%, अदर्स में 37% है। एंड जो मेन प्रोडक्ट ये बनाते हैं, वो बनाते हैं रेडियल टायर्स। एक बायस टायर्स होते हैं और एक रेडियल टायर्स होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्विकली आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, supply structure and the radial structure. The carcass of a bias tyre consists of diagonally oriented सो बायस टायर्स में जो स्ट्रक्चर होता है वो डायगनली ओरिएंटेड होता है, ऐसे आप देख पा रहे हैं। और जो रेडियल वाला होता है उसमें वो एक के ऊपर एक, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक फिर नीचे पैरेलल होता है स्ट्रेट। तो उससे जो टायर रहता है वो एक्सपैंड cable नहीं होता है। plies. The तो plies बेसिकली बायस टायर्स में टायर जब स्पीड पे चलता है तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द टायर ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है। तभी आप देखिएगा जो जितने भी पुराने टायर होते थे हमारे, वो साइडों से नहीं घिसते थे या फिर एक ही जगह से घिसते हुए थे, और जितने भी रेडियल टायर्स है वो यूनिफॉर्मली वेयर एंड टेयर होता है उनका। और बायस टायर्स में क्या होता था कि बीच से या तो घिस जाते थे ज़्यादा, कहीं से फट जाते थे, तो इसका वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी होता था बायस टायर्स का। एंड ये जो अपने रेडियल टायर्स हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, काफ़ी स्टेबल रहते हैं। इवन बीकेडी ने अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट टायर बनाया 57 इंच का फॉर अर्थ मूवर्स। ये देखिए आप टायर का साइज, दैट्स द बिगेस्ट लार्जेस्ट टायर दे एवर मेड बाय एनीवन। सो वो भी बीकेटी ने बनाया फिलहाल अभी, वो भी रिगिड रिजिड डंप ट्रक के लिए बनाया है। सो अगर आपने अर्थ मूवर्स नहीं देखे हैं, सो लेट मी शो यू अर्थ मूवर्स एज वेल, लाइक हाउ दे लुक। ये देखिए आप, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, जो माइंस में जाते हैं, कोयला निकाल के आते हैं, या फिर ऑयल माइंस में होते हैं, या फिर मार्बल वाले उसमें होते हैं, उन सबको कहते हैं अर्थ मूवर्स। बहुत हैवी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनके सबके टायर्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, एंड डेली बेसिस पे यू नीड टू चेंज ऑल दीज टायर्स, बिकॉज अगर ये महीने भर के बाद अगर ये सेफ्टी इशू भी हो जाते हैं, यू हैव टू कीप चेंजिंग देम, बस नॉन स्टॉप आप काम करते हैं, एंड देन यू कैन नॉट लीव ऑल दिस लाइक दैट, तो आपको डेली इसको ट्रैक भी करना पड़ता है। ना लेट्स गो बैक टू द भाई कंपनी के फंडामेंटल्स पे। अब आपको समझ में तो आ गया ना कंपनी करती क्या है, किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे देखते हैं अब क्विकली। सो सेल्स जो करती है कंपनी क्वार्टर क्वार्टर, अभी जून क्वार्टर में जो की है 2,700 करोड़ की सेल की है, एंड एक्सपेंसेस जो रहे हैं 2,000 करोड़ के रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, पेट्रोल लाइक क्रूड हैज बीन द अदर मेन सेगमेंट फॉर द एक्सपेंसेस। क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो देयर कॉस्ट विल गो अप। अभी क्रूड जो मार्केट में चल रहा है समवेयर अराउंड 75 चल रहा है, एंड एनी डे इफ इट गोज डाउन टू 70, ग्रेट मूविंग
एडवांटेज फॉर द कंपनी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा लास्ट क्वार्टर का 660 करोड़ के आसपास का. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा 24% का, विच इज़ गुड. डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट सब कुछ हटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 640 करोड़ का, जो पहले था 480 करोड़ के आसपास का. तो आप देखिए कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी करती आई है. ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं की है, ग्रोथ भी कर रही है. एंड बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखा रही है फ्रॉम 2021 टू 2024. नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो ग्रोथ दिख रहा है, विच इज 3,331 करोड़ से 490 करोड़ तक आ चुकी है. तो विच इज शोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पैटर्न ईयर ऑन ईयर. ओके, लेट्स गो डाउन टू एनुअली. एनुअली में देखिए सेल्स दिखाई है 9,900 करोड़ की लास्ट ईयर, एंड 7,100 करोड़ का एक्सपेंसेस हटा के 2,200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है. एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 1,900 करोड़ का. 1,400 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, विच इज गुड प्रॉफिट फॉर द कंपनी. Company if, is also planning to open another plant in Mumbai itself, near Kalyan area. Kalyan. This is the news which came in recent news in CNBC when the promoter of the company came on the news channel that they are also planning for capex cycle. So ये company के थे fundamentals. Now let's look at the chart. Like where does the chart say? Share has been growing constantly, like from long time. Share has been growing from the levels of, look, from the levels of 4 5 rupees. The company has made a humongous, this is called a magnificent profit company. 4 5 रुपए का stock is right now at 3,000, anywhere around 500 times profit बना के दिया कंपनी ने for shareholders, but from long period of time, not a short period of time. तो अब देखिए कंपनी रेगुलरली ग्रोथ ही करती रही है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने डाउनफॉल दिखाई. एक ये डाउनफॉल दिखाई, फिर यहाँ पे बीच में दिखाई काफ़ी. एक ये चैनल बना रहा जहाँ पे इन्होंने इस एरिया पे बार बार आके सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद जंप कर गया. तो नाउ यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है और ये जो ब्रेकआउट दिया है उसी एरिया पे टेस्ट हो रहा है. व्हाट आई एम प्लानिंग that this area, when the stock comes down to the 20-day moving average, exponential moving average, which is somewhere around 2600, looks like a strong support. Stock वहाँ पे आ रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है, वापस जंप ले रहा है, उसी पे रह रहा है. It's not trying to deviate or not trying to cross that point. So ये एक अच्छा strong support है. You can take a look at this level 2600, and from there you can start putting in small chunk, not a big chunk of your portfolio, but small chunk, and start looking at it, start reading about the company as well. So इसके holders देख रहे थे, shareholders, promoter holding has been really strong. So far 58% of the holding is with the promoter. So more than half of the chunk is with the promoters. Then with mutual funds 14%. So 14% mutual fund के पास है, 58% holding promoters के पास है, and FIs also have around 12%. So more than 75 80% is holding is with the strong hands. And then what is left with the public? Let's see. Public के पास बचा भाई 6.6%. So not much floating stocks in the market. So it's a good time to look into the stock again. Government has also started to put in the money. आप देखिए मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में 0.15% बढ़ गया है. एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू लुक इनटू द कंपनी. स्टेबल कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, कोई गड़बड़ नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत सॉलिड है कंपनी का. आई मीन कंपनी 400 500 गुना पैसा बना के दिया है शेयर होल्डर्स के लिए. देयर इज नो कॉन्स इन द कंपनी, ओनली प्रोज विच आई फाउंड. So you can keep a look at this company. The company name is Balkrishna Industry. Once again, guys, it's the biggest tire company in India. I hope you like this video, guys. And if you liked, please do forward the videos, like and subscribe as well. I see a lot of people come and view, but nobody likes and subscribe, guys. So please subscribe and support the channel and have a wonderful day. Thank you.